guys, welcome back. First of all, thank you so much. Episode 3 तक आप आए हैं, then definitely you have given me all the love. And today, in episode 3 of Icebreaker with Chaya Sharma, we have somebody who's going to bring a very meaningful conversation on the table. June is the Pride month. Pride? Well, we'll talk about it. Today, what I have with me is very important. She identifies as someone who was born with the wrong gender, but she has always been a feminine at heart. Please sit down and grace for this episode as we welcome Prerna. Hi Prerna, how are you? Hello Chaya, I'm doing good. How are you feeling? I'm feeling actually nervous here. Okay. It's my first podcast. I've given many interviews to print medias and given a monologue as well at Joe Stocks. But this is a very personal thing to me. I've never done this podcast thing. I wanted to explore it. I wanted to try so that the knowledge enrich the masses actually here, because it spreads the knowledge to the large audience, because this issue is very sensitive and important. First of all, I would just say कि thank you. आपने आज अगर मुझे ये समय दे दिया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो thank you for choosing me कि मेरे साथ आप ये बात करेंगे in the comfort of this space. And secondly, if you don't mind, I would just want to correct you that I don't feel it's an issue as such. It's not an issue. It is a reality जो अभी तक हम एक नॉर्मल दुनिया, थैंकफुली आजकल की दुनिया काफ़ी वोक है, बट कितने वोक है और कितने नहीं, आई थिंक प्रेरणा हमसे बेहतर इंसाइट शेयर कर पाएगी. सो लेट्स गेट टॉकिंग. व्हाट डू यू से? Definitely. I'm So on. you're on, we are on, and let's get into it. So Prerna, I'll just start from your very background. Okay. आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही है, कहाँ थे, क्या रहा है, कैसी एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के? ओके. मेरी अर्ली लाइफ की मैं शुरुआत करूँ तो मैं मेरठ में पली बड़ी हूँ. बहुत छोटा सा घर, न्यूक्लियर फैमिली के साथ, सिर्फ मम्मी पापा, मेरी एल्डर सिस्टर और मैं. सो स्कूल जाती थी मैं रोज़ एंड जब डर लगता था स्कूल जाने में, एक्चुअली रोज़ वो डर इसलिए लगता था बिकॉज क्योंकि एक मन में एक घबराहट होती थी, हेजिटेशन होती थी कि आज जाऊंगी स्कूल तो आज क्या नया होने वाला है मेरे साथ. अब सोचूंगी क्या नया होने वाला है. हाँ, मतलब व्हाई दिस फियर? हैरेसमेंट का फियर, टचिंग, improper touching का fear, unconsensual touching का fear. During school time? During school time, yes. Because my schoolmates used to touch my chest and see if I have boobs or not, like cis female. And they used to come to the washrooms to see if I have a penis like cis male or not. वो प्रेरणा, आप स्कूल जाते थे और ये जो हैरेसमेंट हो रहा था, ये किस एज से चालू हुआ? कब होश संभाला? कब से याद है जब ये मिसबिहेवियर, वॉशरूम में आ जाना, बॉडी पार्ट्स टच करना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये बहुत स्कैरी लेवल की चीज़ें हैं. आई डोंट नो, अभी भी बहुत बच्चे हैं जो इस स्टेज से गुजर रहे हैं, बता पाते हैं, नहीं बता पाते, अपने अंतर्द्वंद में एक लड़ाई चल रही है. उसके अलावा इस तरीके का साथ के सपोर्ट ग्रुप, पीयर ग्रुप का ऐसा बिहेवियर, ये किस उम्र से आपने देखा और कैसे डील करना? तो खैर, किस उम्र से नोटिस किया? पहला सवाल तो ये है. किस उम्र से? आई टेल यू अबाउट माई फर्स्ट क्लास व्हेन आई वाज इन क्लास 1. किस उम्र से? आप एवरीबडी विल बी शॉक्ड बिकॉज अभी भी आई हैव गेट दोस फ्लैशबैक्स. मुझे अभी भी याद आते हैं वो इमेजेस कि मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में, मेरा न्यू एडमिशन हुआ था सेंट मेरीज अकेडमी मेरठ कैंट में, एंड इट्स अ वेरी टॉप नॉच स्कूल, classy ICSE board, and all rich students, rich brats are there. I know I was sitting in the first bench. I didn't knew, I was very innocent, and I had some, they noticed, those children noticed something different in me, those first class one, and they noticed some femininity in me. They didn't had those words and all, but they knew something was different with this person. So they started, from that point they started distancing with me from class 1 onwards.
that was this is the reality on the ground. So it's all goes on parenting actually, and their mindset in which they're developed, and how parenting is been done, because they learn what the social experience they are having in their homes, in their societies, and now they're bringing back that in schools and treating other children with that. Right. So that's the psychology goes behind that. Now I knew it. पहले तो कुछ नहीं पता था मुझे क्या हो रहा है, because then also you see ना, I feel isolated. मुझे भी नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे लगता था कि मेरी ही गलती है. It was my fault. Something is bad in me actually, because मेरे से कोई दोस्ती नहीं कर रहा है, मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं. जो वहाँ पे बच्चे ही हैं अभी तो क्लास 1 के, इतने बड़े भी नहीं हैं. And they are treating me like this, like हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, you know, they are gossiping among, एक ग्रुप बन जाता है, then they start, you know, laughing at me. And तो क्लास 1 से शुरू हुआ एक्चुअली. टीचर्स को कुछ नहीं पता, बिकॉज आई और डिडंट न्यू, मैं टीचर्स को क्या बताऊँ. राइट. एंड टीचर्स इतना नहीं नोटिस करते हैं, दे डोंट नो, मतलब इतना. और क्लास 1 के बच्चों को आप Class- एनीवे सीरियसली नहीं ले रहे नहीं होते हो, लेते। टीचर्स भी नहीं लेते फिर कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती रही, मेरा ट्रॉमा एंड हैरेसमेंट उतना ही बढ़ता गया. फिर दिस हैपेंड एक्चुअली. घर पे आके बताते थे? घर पे आके नहीं, एक्चुअली नहीं, कभी नहीं बताया? कभी मैंने बताया ही नहीं कि मुझे हैरेसमेंट होता है स्कूल में, और एक्चुअली डर लगता है जाने से. वो फियर था एक कि आज क्या कोई बच्चा मेरे साथ करने वाला है, या आज क्या कोई चीखेगा मेरे पे, या फिर कहीं दूर होके ग्रुप में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा. ब्रेक में भी, लंच ब्रेक में भी, स्कूल में मैं अकेले ही घूमती थी, कोई होता नहीं था एक्चुअली. कोई साथ में बैठे खा ले कुछ मेरे साथ, यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग एंड ऑल, वो सब सिखाया जाता है, बट नो, इम्प्लीमेंट नहीं होता. इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. Because for them I was totally a different person. Like, you know, the process of othering, वो एक्चुअली सोसाइटी में बाद में हुआ है, वो मुझे फील बाद में हुआ. अब मुझे लगता है वो बहुत पहले ही हो चुका था मेरे साथ स्कूल में अदरिंग. तो वो उसका ही अब ऑनगोइंग लाइफ है, बस उसके आगे की बस डिग्री बढ़ रही है एक्चुअली ऑफ अदरिंग. दैट्स ऑल. अब रियल फेसेस सामने आ रहे हैं, यू नो. नाउ यू गेट ऑल, नाउ आई नो आई एम एन अवेयर्ड पर्सन नाउ, बट नाउ आई कैन प्रोसेस एवरीथिंग. दैट उसके बाद ट्रॉमा एक्चुअली इंक्रीज हुआ, कम नहीं हुआ. फिर जैसे जैसे यू नो प्यूबर्टी बढ़ती गई, सो दीज और मेरे क्लासमेट्स एंड स्कूलमेट्स की भी प्यूबर्टी इंक्रीज हो हाउ रही इज थी. लाइफ एज अ टीनेजर? टीनेज एनीवे इज अ वेरी रफ एज. या अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे ये कर रहे थे तो टीनेज तो आई कांट इवन इमेजिन. यस, ऑब्वियसली. How was that? If you, it's not bringing back very bad memories, I would tell you to skip the question. No, it's triggering, I know, but I have to answer because I think everybody should know what happened. Otherwise, they will never get sensitized and treat, you know, the queer person in their family or within their friends group like that. You know, I don't want anyone to be treated like that because I know how it feels. Actually, it's very bad. Nobody should go through. No person should go through that. Not even my haters. Yeah. So that is how the whole life was going. School life तक ऐसे था. कब था moment of realization? Of course, I'm sure since that first class चीज़ें अंदर में शुरू हो गई होंगी. कौन क्या questions उठ रहे हैं? Struggle शुरू हो गया. Struggle शुरू हो गए होंगे. तो कब रहा जब एक तो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आया हो, जब आपको लगा हो कि यार मैं डिफरेंट हूँ, मेरे साथ ये इस तरीके से बिहेवियर हो रहा है बिकॉज देयर इज समथिंग विच अदर्स आर एबल टू सी इन मी बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट और एम्ब्रेस अबाउट माई सेल्फ. ये चीज़ें किस एज पे जाके थोड़ी यू नो बिकेम अ पार्ट ऑफ यू एंड यू स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, एंड दैट टू ऑल्सो with family and socially? Okay, it's a very, very big question in my life, you know. I can understand. It's probably the moment of becoming you. Yeah, becoming a prerna. Becoming prerna. Okay. School life से ही, you know, the internal struggle started actually.
I was attracted to men. I knew it. I have flashbacks since now. At present also I have flashback that when I was in UKG, I was attracted to men, to my classmate, the male body, you know. I was attracted. Now also, because I am a straight transgender woman, I am attracted to males only. That's all. So I knew like I am attracted, but I didn't know the terminology. मुझे कुछ पता ही नहीं था टर्मिनोलॉजी के बारे में, बिकॉज स्कूल में जेंडर स्टडीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, सेक्सुअलिटीज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, एंड टीचर्स बात नहीं करते, यू नो, लाइक असेंबली जो आपके कंडक्ट होती हैं स्कूल में, असेंबली ये टॉपिक नहीं लिया जाता है LGBTQIA+ पे. दैट्स अ शेम, यू नो, लाइक आपको अवेयर नहीं कराया जा रहा है कि, और मेरा पूरा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, everything strictness in everything, you know, discipline, you have to speak English every time, and top notch school. But जितनी ज़्यादा आप हाई क्लास हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन आपको ये इश्यूज़ के बारे में नहीं पता है. ये सेंसिटिव थिंग्स हैं एक्चुअली, ये बहुत नेचुरल है, ह्यूमन पार्ट है. कुछ पता नहीं चला मुझे अपने बारे में एक्चुअली स्कूल टाइम तक. 12th क्लास तक आई डिडंट न्यू अ वर्ड व्हाट इज LGBTQIA+. Okay. The terminologies I'm speaking now here, I have read about it on Google and searched myself. I have done that hard work. I have read about research articles to know myself who I am actually, because I have given my actually, you know, 21 years of my life to just accept myself. That's what my phone after 12th class. Finally, I you know, like I just went to Instagram, you know, and actually saw the feed, you know, like Sushant Devjikar, they are a queer icon. I saw them, their images, their videos, and I was like, oh my god, like they are wearing feminine clothes and all. What I used to do at home in private, you know, it was okay at home at that time, that me being dressed as a female, I used to, you know, like डांस और आजा नचले सॉन्ग्स, यू नो. मैं बैठाती थी अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा सिस्टर को, कि मैं गाना चलाऊंगी या मेरा शो होगा, लाइक दैट वाइब. मैं नाचूंगी लहंगा पहन के, और मैं डांस करती थी, और देखते भी थे वो, दे वर ओके एट दैट टाइम, बिकॉज बच्चा है अभी, खेल रहा है. Okay. दे वर इन दैट माइंड सेट कि ओके चलता है इतना घर पे, बाहर नहीं, लड़का ही है वो. बट वेन आई गॉट माई फोन, और ये चलता रहा, मैं खेलती थी घर पे, यू नो, गोपी बहू बन के घूमती थी मैं. अब मुझे घर में खेलना, मुझे घर में ज़्यादा फिर अच्छा लगता था दैन स्कूल, बिकॉज मेरे घर में आइडेंटिटी एक्चुअली, यू नो, एटलीस्ट वो पेस मिल रहा था, भले ही लिमिटेड सेंस में, बाहर नहीं मिलता था, बट घर में एक्चुअली मिल रहा था. तो आई वॉज वेयरिंग दोज क्लोथ्स एंड वेयरिंग साड़ी. मैं खुद, और नेचुरली मैं साड़ी पहनना सीख गई घर पे, मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं, मैं खुद ही बांधते बांधते बचपन से सीख गई, यू नो. बस टीवी में देखते थे कैसे साड़ी पहनते हैं, एंड आई जस्ट स्टार्टेड वेयरिंग इट. अपनी सिस्टर की, एल्डर सिस्टर की साड़ी में फेयरवेल की साड़ी पहनती थी, एंड क्योंकि मुझे तो नहीं देंगे अलग से ना. यूज टू आलोक वी मेनन, दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटीज. आई यूज टू सी कि OMG, लाइक आई एम ओके, लाइक दिस इज नॉर्मल. दे आर वेयरिंग इट आउटसाइड वेरी प्राउडली एंड वेरी, यू नो, like just a usual cloth, just like a usual cloth. It's not like, not a big deal. What I'm wearing at home, they are wearing it outside in public and giving interviews and giving, no, like this podcast, like this. It was my dream actually to come here and do this. But then I started realizing, you know, it took me a part that I used to believe that something is wrong in me till the age of 21. I knew it. It is there. It is right. In my subconscious mind, in my heart, I knew it. But because the way people say na that ये सब, you know, adult movies का असर है, and after lots of struggle, you know, when I got that confidence, you know, like after seeing all the influencers, I read many articles, I researched actually. No, it's written on Google, it's written by many research scientists. It's science proven actually that it's normal, it's valid. You can even cross dress also, like. And you can move outside in public. It's all about mental conditioning that we have been conditioned to. Like, this is typically, you know, male body, so they will wear pant shirt. This is female body, they will wear ghagra, western outfits, and typically female clothes.
they will wear frocks, gowns, salwar suits, saris. This is what we have been conditioned to mentally. मैं उससे बाहर आई, वो सब पढ़ के एक्चुअली मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया कि ये सब क्या है. मैं खुद, ये मुझे लॉकडाउन ने हेल्प की है. कोविड का टाइम था उस समय. आई वॉज रिसर्चिंग माई सेल्फ आर्टिकल्स कि हु आई एम, लाइक पार्ट वॉज दिस फॉर या नाउ आई कैन से दैट because now I can process everything, each and every part of me, what I've been through to, and जो हुआ, and सारे thoughts process कर पाती हूँ अब. When I got admission in Delhi University, and I came to Delhi from Meerut. Now the doors opened for me in Delhi. It was not open back in Meerut. I was just amidst the four walls of a room and confined there. वहीं बैठी थी, टीवी देख लिया, आर्टिकल्स देख लिए, बस खा लिया. कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था. लॉकडाउन के बाद जब कॉलेज खुले, मेरा एडमिशन भी लॉकडाउन में ही हुआ, 2020 बैच. When I came to Delhi, when my university reopened after many years, 2-3 years of lockdown, I attended my first Pride event in Miranda House. Wow. I went there. घर पे झूठ बोलती थी मैं. मेरी फैमिली भी शिफ्ट हो गई थी दिल्ली NCR में, दिलशाद गार्डन के पास. बट मैं घर पे झूठ बोल के गई कि मैं प्राइड इवेंट, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर. मुझे फ्रेंड्स बनाने थे अपने जैसे, बिकॉज सेंस ऑफ अपनी बिलोंगिंग होके भी नहीं थी. दैट्स व्हाई. सो प्रेरणा, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बट सिंस यू हैव टॉक्ड कि आप प्राइड मार्च अटेंड करते हो, टिंडर का इवेंट अटेंड करने वाले हो, डू यू थिंक इंडिया इज़ रेडी एंड इंडिया इज़ एक्सेप्टिंग ऑफ द होल कम्युनिटी, द होल क्यूअर कम्युनिटी, एंड हैज़ वार्म्ड अप? जो हमारे एप्रीहेंशंस, जैसे हमने बोला कि हमारी सेंसिटाइजिंग नहीं हुई है, हमें पेट्रियार्की से बहुत सारी चीज़ें हमारे बैगेज में आ रही हैं, जिसकी वजह से हम नए, या हमें जो ट्रेडिशनली एक सोच दी गई है कि मर्द इस तरीके से होता है और औरत इस तरीके से होती है, उसके अलावा तीसरा टाइप हम समझते नहीं हैं. वो फ्रीडम नहीं है कि कोई और किसी और ढांचे में भी हो सकता है. सो यू थिंक, आपके खुद के एक्सपीरियंस से, इज़ इंडिया रेडी? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? अगर शॉर्ट में आंसर बोलूँ अभी एकदम से, तो इंडिया इज एक्चुअली नॉट रेडी, बट आई हैव अ होप. That's why I'm living. I have been here. I've gone through so much, and I know आगे भी मुझे बहुत सहना है अभी. But India is not ready at the moment. They are not ready to listen and to unlearn नहीं करना चाहते हैं लोग, and then relearn. Main point ये है. और तब तक वो अनलर्न कैसे करेंगे जब तक उन्हें कुछ बताया नहीं जाएगा. वो सुनेंगे, तब तो सुनेंगे, वो कुछ समझेंगे. उन्हें स्कूल में ही कुछ नहीं बताया, उन्हें कॉलेज में भी मैं कॉलेज में थी, कोई टॉपिक ही नहीं जेंडर स्टडीज़ का. लाइक कॉलेज में, इन माई ओपिनियन, हर कॉलेज इंस्टीट्यूशन, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल हो कॉलेज हो, जेंडर स्टडीज़ तो कंपलसरी टॉपिक होना चाहिए हर सब्जेक्ट के साथ. आई एम नॉट बैगिंग अबाउट ह्यूमैनिटीज़, बट साइंस स्टूडेंट्स आर मोर डम दैन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स. Science students are dumb. They don't know anything actually, about these genders, sexuality. They are more into, formula, physics, chemistry. I am being a science student. Like, I have been till 12th and then switched to humanities. Thankful I switched. Humanities, social science, बहुत मदद की है मुझे. That critical mindset develop होने में मेरा. मेरे प्रोफेसर्स, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के प्रोफेसर्स मेरे कॉलेज के इतने एडवांस, इतने ओपन माइंडेड. मुझे लगा था पेट्रियार्कल होंगे, वो टिपिकल मैन को देख के थोड़े एजेड हैं, पेट्रियार्कल होंगे, मैंने सोच लिया था. कितना मुश्किल होता है ना. अक्सर नॉर्मल जो लोग बोलते हैं कि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी की समस्याएं क्या होती है, कि जॉब नहीं मिल रहा है तो मनपसंद नहीं मिल रहा है, मनपसंद मिल गया तो खुश नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है मनपसंद इंसान से, परिवार के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डेथ वगैरह वगैरह. बट इट इज़ सो फनी, एंड आई थिंक आपसे बात करके मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि जीना, और ऐसे जीना जहाँ आप ऑनेस्टली जो हो, मैं क्या अंदर से फील कर रही हूँ मैं वो भी नहीं हो पाऊँ. मैं मेरी
किसी और के साथ क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप कहाँ जाएगी, सोसाइटल मेरी रिलेशनशिप क्या है, वो सब एक तरफ, मेरी खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है और मैं उसे ओपनली एक्सेप्ट ना कर पाऊँ या डिक्लेयर ना कर पाऊँ, आई डोंट थिंक उससे बुरा कुछ हो सकता है, या उसके लिए एक्सेप्ट ना करी जाऊँ, उस चीज़ के लिए हैरिस करी जाऊँ, या से जैसे आपने बोला फर्स्ट क्लास है, आई एम श्योर वो तो फर्स्ट क्लास के बच्चे थे, आजकल एल्डर्स आर नो लेस। नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इंसिडेंट्स क्या क्या होते हैं। आपने बिल्कुल सही बोली ये बात, ये मेरी अस्तित्व की लड़ाई है, ये मेरे अस्तित्व की, मेरी आइडेंटिटी की लड़ाई है ये, क्योंकि मेरा पूरा जीवन आई थिंक सो मेरे अस्तित्व की लड़ाई में ही बीत जाएगा। बिकॉज मुझे ऐसा फील होने लगा है, बिकॉज मैं जैसे यहाँ पे पॉडकास्ट शूट में आ रही हूँ, तो ऑटो रिक्शा वाले या फिर आप देखिए मैं जैसे घर से बाहर निकली अपने स्टूडियो अपार्टमेंट की बिल्डिंग से, देन ग्रुप ऑफ मेन वहाँ खड़े थे गैदर होके इकट्ठा, एंड दे वर सीइंग मी बहुत वियर्डली इन द सेंस, मेरा इसमें मतलब है दे वर सीइंग मी सेक्सुअली, बिकॉज एक ट्रांस वुमेन को एक एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, सेम एज वुमेन, सिस वुमेन ऑल्सो, नॉट डिक्लाइनिंग दैट, बट ट्रांस वुमेन सिस वुमेन से और ज़्यादा वनरेबल हो जाती हैं एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट। डिग्री का फ़र्क है यहाँ पे, बस हम ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आई नो मोस्ट ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर हैं, आई नो वो अपनी चॉइस से नहीं है, मजबूरी से है बहुत सारी, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। बट अब हर ट्रांसजेंडर वुमेन को स्पेशली आप कैसे सेक्स वर्कर समझ सकते हैं? वो मुझे आई थिंक सर प्रोस्टिट्यूट समझते हैं, उनकी जो मुझे वाइब आती है उनकी आइज़ में, दे सी मी एज अ प्रोस्टिट्यूट। और आई नो वन इंसिडेंट जो बहुत ही एज अ मेरे दिल पे मुझे छू गया था। मैं ऑफिस कैब से जाती थी पहले, आई यूज टू लिव इन लक्ष्मी नगर, जो लक्ष्मी नगर मार्केट के लिए बहुत फेमस है, बट सोसाइटल रेसिडेंशियल एरिया बिल्कुल भी एडवांस नहीं है, बहुत ही आई थिंक सो मैं नाम दूँ तो स्लम टाइप लगता है बिल्कुल। एंड जो वहाँ के जो लोग हैं उनका माइंडसेट भी वैसे ही है, वहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, आई डोंट नो क्या पढ़ रहे हैं वो लोग स्टूडेंट्स, आई एम श्योर, मतलब मैं मुझे आगे पढ़ना है, मेरी मजबूरी है, तो आई एम वर्किंग अभी, बट तुम लोग क्या पढ़ रहे हो वहाँ पे? IAS की तैयारी होती है, CA की तैयारी, एग्जाम्स की, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी होती है, बट व्हाट दे आर लर्निंग, किसी ह्यूमन की डिसरिस्पेक्ट करना, क्या आप ये सिखा रहे हैं प्रोफेसर्स या फिर वहाँ पे कोचिंग टीचर्स? मैं शॉक्ड हूँ। वहाँ पे आई यूज टू स्टैंड, क्योंकि मेरे रात का टाइम था, अनसेफ फॉर वुमेन, बट मुझे खड़ा होना पड़ता था 12 बजे, क्योंकि मेरी कैब आती थी, 1:30 का टाइम होता था रात को, क्योंकि नाइट शिफ्ट होती थी पहले। बट तो वहाँ आई मैं खड़ी हुई, सामने से एक व्यक्ति आए, पर्सन आए स्कूटी पे, एंड उन्होंने मुझे देख के ही, मैं कैब का वेट कर, उन्होंने मुझे शायद कुछ और ही समझ लिया कि मैं क्यों खड़ी हूँ वहाँ रात को, बिकॉज वहाँ ट्रैफिक लाइट भी थी, तो उन्होंने कहा रेड लाइट पे खड़ी है कोई लड़की, एंड वो पास में आए और मुझे चाबी दिखाते हुए डायरेक्ट पूछा चलो मेरे साथ। मैंने कहा व्हाट, मैं क्यों चलूँ, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मुझे दोस्ती करनी है, ये रिप्लाई आया मुझे। मैंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। वो साइड में हुए, फिर इशारे करने लगे चलो मेरे साथ, स्कूटी की चाबी दिखा के ऐसे, लाइक मतलब ये मेरी रिस्पेक्ट है या फिर मेरा स्टेटस है सोसाइटी में, आपको जो दिख रहा है ये है एक्चुअल स्टेटस मेरा, जो उसने मुझे दिखाया उस दिन। भले ही मैं काम करूँ, भले ही मैं सेक्स वर्क नहीं करूँ, मैं खुद मतलब जॉब करूँ ऑफिस में किसी कंपनी में, तभी उसने मुझे उन्हीं में लाइक वही स्टेटस दे दिया एक इन्फीरियरिटी का, कि ये भी सेक्स वर्कर होगी, एंड उसी नज़रों से देखा, इन्फीरियरिटी उसकी आइज़ में थी। ऐसा नहीं है कि सेक्स वर्क को मैं वो कर रही हूँ कि इज़ अ वेरी बैड वर्क, उनकी मजबूरी होती है एंड सबकी चॉइस है अपनी, बट तो मुझे भी वैसे ही देख रहे हो एक प्रोस्टिट्यूट, सबको एक स्किल से नापना। यस, दैट्स द मेजर पॉइंट। दैट्स इवन अगर मैं बात करूँ मेट्रो सेशंस की, दिल्ली के मेट्रो सेशंस फेमस है दिल्ली मेट्रो के लिए, बट DMRC क्या सेंसिटाइज कर रहा है लोगों को, वहाँ जेंडर न्यूट्रल चेक पॉइंट्स नहीं है, मेल फीमेल हैं, उसके बाद जो नॉन बाइनरी आइडेंटिफाई करते हैं, आई एम अ ट्रांस वुमन, आई कैन गो इन फीमेल, बट
अभी आई एम लुकिंग लाइक यू नो आई एम गेट अ डे पास एज अ सिस वुमन, आई एम गेटिंग यू नो दे इवन इवन जो वहाँ पे चेक पॉइंट्स पे जो गार्ड्स होते हैं, जो चेक करते हैं, ऑफिसर्स होते हैं एक्चुअली, जो चेक करते हैं आपको, तो पहले आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट यू कैन से 1 year बैक व्हेन आई डिडंट स्टार्ट माय HRT ट्रांजिशन में स्टार्ट नहीं किया था अपना, तो तभी मैं ट्रांसफॉर्म ही नहीं थी एक्चुअली, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स इन माई माइंड. बट I used to go to from wearing some feminine clothes. I have not big hair at that time, but I used to go in female section because मैं वही फील करती थी, मैं मैन का भी फील करती थी कि तो मैं क्यों जाऊँ मैन से. बट एट टाइम मुझे बहुत बार क्वेश्चन किया है, लाइक चेक करते हुए आप वहाँ से जाइए मेल सेक्शन से, चेक करते हुए मुझे बोला है ये. मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मैं फीमेल हूँ. एक बार इतना यू नो फ्रस्ट्रेट में हो गई थी बार बार कि ये कंटिन्यूस हो रहा था, तो मैंने बोला उनसे थोड़ा गुस्से में आके कि मैं यहाँ लिखवाऊँ मैं लेडीज़ हूँ या वुमेन हूँ, लिखवाऊँ या घूमूँ, लिखा है कि तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ. आई नो लेडीज सेक्शन, तभी तो मैं लेडीज़ में जा रही हूँ. आई एम नॉट ब्लाइंड, मुझे दिख रहा है, मैं सोच समझ के ही जा रही हूँ. बट आपके पास जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स नहीं है मेट्रो स्टेशंस में. वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि मैं वुमेन सेक्शन में जाऊँ, तो नहीं आप PWD में जाइए. मतलब लाइक ये स्टेटस है, आप जेंडर वॉशरूम नहीं बना सकते. मुझे आप डिसेबिलिटी, आई एम नॉट डिमीनिंग देम, बट आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ. आई एम ए ट्रांसजेंडर वुमेन और मेरा हक है कि मैं जेंडर न्यूट्रल में जाऊँ या वुमेन सेक्शन में जाऊँ. राइट. तो ये सिनेरियो है ग्राउंड लेवल पे जो हैरेसमेंट होता है, इवन इन वर्क प्लेस में होता है. So you are completely an independent woman now, living in Gurgaon, working on yourself, working otherwise जो दुनिया के लिए काम करना ज़रूरी है. जैसे आपने बोला, ठीक है बाहर के समाज में तो मुझे पता ही नहीं है, आई रियली हैव नो आइडिया एंड होप्स एज टू व्हेन दिस विल हैपन. बट क्या वर्क प्लेसेज इंक्लूसिव हो गई हैं फॉर एन एजुकेटेड ट्रांस वुमन और एनीबडी फ्रॉम द LGBTQ कम्युनिटी, इफ़ दे वॉन्ट टू गो, एक नौकरी करना चाहें, जो हम बोल रहे हैं कि आजकल हम ओपन अप हो रहे हैं, वर्क प्लेसेज में सर्टेन स्लॉट रख रहे हैं. यू आर अ वर्किंग वुमन, आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा है, क्या चीज़ें उतनी अच्छी और हंकी डोरी हैं जितनी दिखाई जा रही हैं? इज इट बेटर? ऑफकोर्स अर्निंग योर ओन मनी इज बेटर, बट it has to come from a happy place. You have to be happy at your workplace. You have to feel safe at your workplace. Yeah. So how's that? That's actually not safe. My workplace is not safe, to be short. It's not safe. I will explain now how it's not safe. Because the amount of misgendering I have heard, you know, in school time, I'm feeling the same actually in workplace. It's just school to office or college to office, you can say. Misgendering as in? Misgendering as in they are हिंदी में अगर मुझे वो डेड नेम से बुला रहे हैं. जो मेरा पुराना नाम था मेल का फेस का, मुझे वो उस नाम से बार बार मिसजेंडर करके बुला रहे हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में उन्हें लीगैलिटी चाहिए. उनके पास कोई ट्रांसजेंडर एक्सक्लूसिव पॉलिसी नहीं है कि जो वो सफ़र करते हैं, जो उन्हें दिक्कतें आती हैं डॉक्यूमेंटेशन वर्क को लेके, उतनी सेंसिटिविटी ह्यूमैनिटी नहीं है एक्चुअली. तो कैसे इंक्लूसिव स्पेस हुआ? आप अपने सिस्टम में आप डेड नेम डाल रहे हैं लीगैलिटी के तौर पे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट आप ऑब्लिक करके प्रेफर्ड नेम भी डाल सकते हैं जिससे आप उसे सम्मान दे सकें, उसकी आइडेंटिटी को. तभी आपका वर्क प्लेस इंक्लूसिव होता है. प्राइड मंथ आने से या फिर मैं गई थी एम्प्लॉय केयर रूम में अपने चैलेंजेस बताने, अपने हेड को डिस्कस करने कि मैं जो फेस करती हूँ ट्रांसजेंडर वुमेन आपकी कंपनी में. तो उन्होंने मुझे बोला, पहला जवाब दिया कि आपको पैसे चाहिए क्या सर्जरी के? मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए सर्जरी के. लाइक उनका मतलब माइंड सेट देखिए, माइंड में ऐसे कैसे आ सकता है कि पैसे चाहिए सर्जरी के, मैं इसलिए आपके पास आ रही हूँ. मेरा वो मकसद नहीं था. दैट इज़ अनदर थिंग. वो तो बस लास्ट में, वो तो अब देंगे नहीं देंगे, आई विल बी ग्रेटफुल. देंगे तो नहीं देंगे, इट्स फाइन. बट पहले आप मुझे सम्मान दीजिए इस कंपनी में, मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मेरी आइडेंटिटी को अपहोल्ड कीजिए, जो मैं हूँ, मेरे अस्तित्व को. तभी मैं आके काम कर पाऊँगी ना. आप मतलब
आप मुझे ही पहले सम्मान नहीं दे रहे हैं, कोई डिसरिस्पेक्ट होकर कैसे काम कर सकता है वहाँ पे? तो मैंने, और ये आयरनी थी एक्चुअली, यू नो, मैं वहाँ गई एम्प्लॉय के रूम में, तो वहाँ प्राइड मंथ के फ्लैग्स और वो सब कोने में रखे थे प्राइड जून के लिए। आई वॉज शॉक्ड, मतलब दिखाने के लिए आप बड़ा बड़ा इंक्लूसिविटी, सेंसिटिविटी लिख देते हैं, ग्रोथ, डाइवर्सिटी, बट ग्राउंड लेवल पे क्या है जो मेरा हाल हो रहा है वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर वुमेन का, लाइक मिसजेंडरिंग हो रही है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, अब्यूज़ किया जाता है। वॉश, एक बार मैं शुरुआत में आई डिडंट न्यू, मैं वुमेन वॉशरूम में चली गई थी शुरुआत में, दैट वाज नॉर्मल फॉर मी, बट उनके लिए अब नॉर्मल था वो कि मैं वुमेन वॉशरूम में कैसे जा रही हूँ। आई वेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफिस के वुमेन वॉशरूम में, एंड बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, दैट गर्ल्स ओनली, मतलब आई थिंक सो वन ऑफ द, जितना मुझे ध्यान है, वन ऑफ द गर्ल टीम लीडर, सिस वुमेन टीम लीडर, उसने शायद कंप्लेन कर दी थी कि कोई मेल घुसा है फीमेल वॉशरूम में। तो देन सब बाहर खड़े हो गए थे। आई वॉज शॉक्ड कि क्या हो रहा है ऑफिस में, लाइक सब नीचे देखने आ गए, बाहर भीड़ इकट्ठा हुई थी वॉशरूम के। देन सम एम्प्लॉय के टीम ओनली, उन्होंने मुझसे बात करी कि आप ना ऊपर एक थर्ड फ्लोर पे, बस एक थर्ड फ्लोर पे जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम है, अब वहाँ जाया करो। So you go all the way to the third floor. दे सेड मी, यहाँ मत आया करो आप, मतलब आप प्लीज़ यहाँ मत आइए फीमेल वॉशरूम में, आप थर्ड फ्लोर पे जाइए बार बार, भले ही मेरा लॉग इन कभी सेकंड फ्लोर पे हो, कभी फर्स्ट फ्लोर, ऊपर जाइए, वहाँ पर ऊपर जाइए, फिर नीचे आइए, वहाँ जाया करिए, वहाँ कोई नहीं दिखेगा, लाइक थोड़ा सिक्योर है वो उनके हिसाब से। Prerna, on behalf of all of us, people who identify as straight, I don't know what that exactly means, but all of us who call ourselves straight people with no doubts about identities, अपने एग्जिस्टेंस को लेके जिन्हें ये लड़ाइयाँ कभी लड़नी नहीं पड़ी, उन सब के बिहाफ पे आई एम ट्रूली सॉरी, and I'm very sorry to not just you but to I don't know how many people out there who are facing this every day. मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं ऐसी लड़ाई शायद 10 दिन के लिए भी लड़ पाऊँगी कभी. I will give up. You are very strong. You are truly very strong because इतना कर पाना, फर्स्ट क्लास UKG से लेके यहाँ तक आ पाना, इतने सालों की लड़ाई अपने घर वालों के, दुनिया के, वर्क प्लेस के, हर जगह के साथ करना और हर बार ये प्रूव करना कि आई एम एट पार विद यू, आई एम नो लेस, आई डिज़र्व दिस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये सब बातें, क्योंकि हम लोग कितना भी अपने आप को ह्यूमंस कह दें, आई डोंट थिंक वी आर ह्यूमंस येट. ये इसकी कोई अलग लड़ाई नहीं है. हमें बस ये समझना है कि जैसे ये दो जेंडर्स हमें बताए गए थे, देयर इज सर्टन गैप अदरवाइज ऑल्सो, जहाँ पर कुछ एक अलग लॉट है जो सेम सेक्स, एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, वट एवर इट इज, दे फील डिफरेंटली एंड ह्यूमैनिटी यूनिकली अलग नहीं है हम आपसे, बिल्कुल नहीं है. Because इट्स जस्ट वन ऑफ अस. yes, अगर इफ यू हैव एक्सेप्टेड मेल्स एज बीइंग मेल्स, देन दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज supposed to be, right? yeah, I am very sorry and I am really like मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ जैसे किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं ना, मुझे वो फीलिंग आ रही है. I really feel that there is so much of representation that needs to go out. yes. Kudos to you, आप तो इतना बात कर पा रहे हो. चलो, I'll wrap the conversation but I'll have one question for you. Okay. If Prerna, you are how many years old, if you don't mind sharing? It's fine. I'm 23 only. 23. 23, sweet girl. So if a 23-year-old Prerna has to go back, आप अपने उस फर्स्ट क्लास की सेल्फ को, या से टीनेज में जब परेशान थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, खुद से, दुनिया से, घर से, छुपाना, बताना, सब कुछ, what would a 23-year-old Prerna tell the first class or a teenager Prerna? What would be your advice?
माई एडवाइस टू माई यंगर सेल्फ वुड बी कि होप मत छोड़ना, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लड़ना अभी और है और जीना भी है, सरवाइव नहीं जीना है और जीतना खुल है। के, और जीतना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, लव योर स्पिरिट फॉर दैट. एंड जस्ट ऑन द एंडिंग नोट, इज देयर समवन इन योर लाइफ? आर वी एक्सपेक्टिंग अ ही? सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट द अट्रैक्शन पार्ट, सो अट्रैक्शन कहीं तो लीड करता ही है. आई एम स्टिल, मैं प्रेरणा हूँ, अगर हम इसे उस सेंस में भी लेना, हाँ, लाइक सिंबॉलिक सेंस में, मैं अपने अनुराग को ढूंढ रही हूँ। मुझे सिंबॉलिक और सीरियल वाले सेंस में. हाँ, अच्छा, कसौटी जिंदगी सो के यू आर sense लुकिंग में। फॉर योर अनुराग येट. हाँ, मुझे दिखते हैं बहुत हमें अनुराग, आई डोंट नो कौन बनेगा मेरा बार। चलो, आई एम होपिंग एंड आई एम सेइंग ये बहुत जल्द होने वाला है. वील हैव अ पार्ट 2 ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ओके, because I am very sure there's so much more Yes. that I need to know, that my audience needs to know. बहुत कुछ है जो unfold करना है. Some has been one great conversation, Prerna. And I'm very sure my audience who's sitting back at home and जिन्होंने ये समय निकाल दिया है, इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, आई एम होपिंग कि इससे हमारा कुछ नज़रिया, हमारे सोचने का नज़रिया, शायद हमारा बर्ताव करने का नज़रिया भी बदल जाए तो बहुत होगा. इंसान ही तो है आखिर. थैंक यू सो मच.